Hello everyone, welcome to our channel. Today we are diving into the fascinating world of integration. Whether it's merging technologies, cultures, or ideas, integration plays a crucial role in our interconnected world. I am Azharul Talukdar, and this is our lecture number one on integration. So, come to the topic. Here you see the definition of integration given here. You see here, this is the integration given. You see, actually, the integration is the converse process of differentiation. Integration is a converse process of differentiation. So, before going to integration, you must know about differentiation. So, what is differentiation? All of you know this one. You see, ddx. Let us first consider a function capital letter fx. Say this one, capital fx, and say its derivative is equal to small letter fx. Then you see, if this derivative of this fx function, this capital fx function is equal to the small fx function, then conversely I have to say the integration of this fx is equal to this capital fx. So I have written here, then this fx, small letter fx, is called the derivative of capital letter fx, this one, and capital letter fx, this one, is called the antiderivative or the primitive or the integral of small letter fx. So very simple, you see, if c is a constant, you see, if c is a constant, then obviously ddx of this complete function fx plus c will also be is equal to small letter fx. It is obvious case because constant differentiation always gives us 0. So the derivative of capital Fx only is equal to Fx, and derivative of capital Fx plus C will also be is equal to Fx, small letter Fx, because ddx of this C will be equal to 0. So therefore we can say that this fx plus c also, this fx plus c, capital Fx plus c, is also the antiderivative of small letter fx. Yes. So fx plus c is also called the antiderivative or is called the integration. And since c, this c is an indefinite constant, therefore this capital fx plus c, this is called the indefinite integral of small letter fx, and symbolically this is simply written as like this one, simply written the integration of this fx is equal to capital letter fx plus c, and this is written here, and this is the definition. And here are some theorems, very simple theorem. You see, integration of fx plus gx, then it is equal to integration fx plus integration gx. That is the integration symbol. This integration symbol is distributive over addition or over subtraction. It may be subtraction also. Then integration of k into fx, where k is a constant, obviously. So then this k will come out of the integration, and the integration sign will act only on the term involving x only, because difference integration is taking with respect to x. So similarly, already we know that the integration is the converse process of differentiation. Therefore, this is the derivative of some function fx, and we are taking integration of that f dash x. So obviously, it will give us the original function fx. That means, let me take one example. Say the dx of integration of, say, cos x, cos x. Just you think integration of cos x will be equal to, you think, whose differentiation of whose differentiation is equal to cos x. You just recall that. So obviously we know that the differentiation of sin x is equal to cos x. That is, it is the derivative of sine. So integration of cos will be equal to simply sin x, and we have to give a constant of integration plus c here. This is constant. This is called constant of integration. Okay, so in the similar way, ddx of integration fx. So ddx and integration, they are inverse process. Already we discussed here. These are converse process of each other, and therefore ddx of integration will be equal to the function itself. Okay, and then d of fx. This is called a differential of fx. Differential of fx means, you take one example like this: d of sin x, d of sin x will be equal to, it is cos x, and
dx, because d dx is not given here, this is not given here, so I am taking just differential of sin x, so this dx will come there. Okay, so you copy this part, and now we go to the formula section. You just take the screenshot of this, and you should memorize all of this formulae. So let's start the problem section of this exercise. So let me start with a very simple question. Say problem number 5, I'm taking problem number 5. The question is a power x plus b power x whole square divided by a to the power x and b to the power x dx. So this is your problem, and this is equal to, first of all, I cannot integrate this function directly. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फार्मूला अगर मैचिंग नहीं होता है तो हम उसको इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रल है वो फॉर्मूला इसका प्रीवियस स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला था ए टू द पावर एक्स divided by log of a to the base e. It is optional, you may write or you may not write. So this is the formula to be used to solve this problem. So ये है, ये प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सो पहले हम इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे, तो उसके लिए हम इस होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए पावर 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए पावर x b पावर x and plus b power 2x divided by a power x b power x dx. So ये है हमारा एक्सपेंशन। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे। सो ए पावर 2x ओवर दिस वन विल बी सिंपली a by b whole to the power x dx is the first one, plus 2 times of integration, this a to the power x b to the power x will get cancelled, dx will be there only, then plus this and this divide, after division it will be integration of b by a whole square, and not whole square, whole to the power x, तो b by a whole to the power x then dx इज इक्वल टू, तो इसके बाद हम इसको इंटीग्रल करेंगे, फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो ए बाई बी होल टू द पावर एक्स, इट विल बी ए बाई बी होल पावर एक्स डिवाइडेड बाई log of a by b, this one, then plus 2 is remaining here, integration dx is x only, plus this is b by a whole power x divided by log of b by a, so as the integration is completed, so you give the constant of integration plus c. So this will be the answer for the question. Now I'm taking one more question. You see the question number 6, problem number 6. I is equal to integration of, it is 1 by 1 plus sin x. So this problem can be done very easily, as I'm taking the conjugate product of this, that is 1 minus sin x. If I take this in the numerator, the denominator will be 1 plus sin x into 1 minus sin x dx. I can write like this, equal to integration 1 minus sin x, this will remaining same, and this is nothing but 1 minus sin
square x dx, and that is equal to integration of 1 minus sine x is remaining same, and this is simply cos square x dx. After this, you just separate this integral as like 1 by cos square x can be written as sec square x dx, then minus, this is minus, then sine by cos square, so it can be considered as sine by cos into 1 by cos. So you can write 1 by cos as sec x and sine by cos as tan x dx, and that is equal to integration sec square, so will be equal to just tan x minus integration sec x tan x will be only sec x, then plus constant of integration c, because sec square x, this is ddx of tan x, therefore integration sec square will be 10, and similarly ddx sec x will be equal to sec x into tan x, so integration sec x tan x is equal to only sec x, and this will be the answer for your question. Now I am taking one more question. Question number 8. We take question number 8. The problem is I is equal to integration of sec square x into cosec square x. So इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये अगर आपको अच्छे से सीखना है तो पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री का फुल कॉन्सेप्ट, उनका फॉर्मूला, उनका आइडेंटिटीज सब कुछ आपको आना चाहिए. सो यहाँ देखिए ये इंटीग्रल जो लिखा है मैंने, ये इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेने की कोशिश करेंगे. सो सेक स्क्वायर एक्स इट इज़ एक्चुअली 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इंटू 1 बाई कोसेक स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. सो पहले हम ये कर लेते हैं इज इक्वल टू, अब देखिए 1 इंटू 1, सो इट इज एक्चुअली नाउ 1 बाई, इट इज 1 बाई, देखिए डिनोमिनेटर आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स होगा. तो इसके बाद आप देखिए इंटीग्रेशन, ये जो 1 है, इस 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला जो टर्म्स है इसको आप सेम रखिए, सेंस करने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद आपको क्या आएगा, देखिए इज इक्वल टू, देखिए इफ आई सेपरेट दिस इंटीग्रल साइन स्क्वायर बाय दिस वन, तो साइन स्क्वायर विल कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर. सो 1 बाई कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर दिस कैन बी रिप्लेस एज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये पहला वाला हो गया, प्लस अब दूसरे में आइए कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर कैंसल्ड आउट, सो हमारे पास अब रहेगा 1 बाई साइन स्क्वायर, एंड 1 बाई साइन स्क्वायर इज सिंपली कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो लिखना ही पड़ेगा. सो दिस इज इक्वल टू, नाउ यू सी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इज नथिंग बट simply tan square x, and integration of cosec square, you have the formula, this is minus cot, नहीं सॉरी हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ. इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर इज 10x, एंड इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स. तो इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया, तो प्लस c is the constant of integration. So this will be your answer for the question. Now I will take one important question for your exam, and it is question number 9. Very important question. The problem is I is equal to integration of cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha
dx. दिस इज योर प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी में जो आपका बुक है उसमें भी डाला हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म तक कन्वर्ट करने के ट्राई करेंगे। Since you have denominator as cos x minus cos alpha, keep in mind the variable is x only, not alpha. Alpha is a constant, so cos alpha complete function is a constant. But this cos x, this is your variable for integration. सो पहले आप ऐसे काम कीजिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर आप कैंसिल करने की कोशिश कीजिए न्यूमरेटर की हेल्प से। सो इसको इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स लिख सकते हैं आप, क्योंकि कॉस टू एक्स, तो cos 2x has four formulae, actually four formulae. Cos 2x you can write in terms of cos as well as sine, that is it is cos square x minus sine square x. You can write this one also. It can also be written as 2 cos square x minus 1. You can also write 1 minus 2 sine square x, or you can write 1 minus 10 square x divided by 1 plus 10 square x. All of these are formula for cos 2x. But in this problem, I should use the second form of the formula, that is this one. So cos 2x, it can be replaced by 2 cos square x minus 1. This is for cos 2x, minus cos 2 alpha. This is 2 cos square alpha minus 1 divided by cos x minus cos alpha, and dx is the variable, is equal to integration. After opening this bracket, this minus plus 1 and minus 1 will get cancelled, and 2 is common, so 2 can be taken outside, or you may write like this: 2 into, in the numerator now you have cos square x minus cos square alpha divided by cos x minus cos alpha. It is cos x minus cos alpha, and dx is already there. So this is equal to, now 2 can be taken outside. This cos square x minus cos square alpha is actually a square minus b square form. So you can write here cos of x minus cos of alpha whole into cos of x plus cos alpha divided by cos x minus cos alpha dx. So this is your problem now. And after this now this will get cancelled. This one is cancelled. So I can write this is equal to 2 times of integration of now just remaining this part only, the second factor, that is cos x minus, sorry, cos x plus cos alpha dx. This part will remain now. Now integrate it, is equal to, keep in mind 2, you see it is actually integration of cos x. Integration of cos x is what? Integration with respect to dx. Cos x integration is sin x. But here you should sincere here, because integration cos alpha dx, many student writes sin alpha, integration of cos alpha as sin alpha. But actually this alpha is a constant, because you have to see here it is dx. So you should consider those terms involving x as the integrand, not the other term. Therefore cos alpha, this is a constant term. So theorem as per theorem, this cos alpha will remain as it is. इसको अब रहने दीजिए। इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सिर्फ dx का, और dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास x और प्लस कांस्टेंट से। यहाँ स्टूडेंट कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, इंटीग्रेशन कॉस अल्फा की जगह यहाँ साइन अल्फा लिख कर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो तो मिस्टेक हो जाएगा। सो आप इस लाइन में थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। ये cos alpha will remain same and integration should be from dx only. So this will be your answer. ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं ऐसे। आप देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि देख लीजिए आप
ये क्वेश्चन है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। तो मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट, इधर हो सकता है ऐसे। ये डी एक्स के बदले में अगर इसमें डी अल्फा दे देते हैं, अगर इसमें आपको डी अल्फा देते हैं, तो आप पहले वाले जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया ओरिजिनल प्रॉब्लम, तो उसमें यहाँ क्या रह जाएगा, इसमें रह जाएगा कोस एक्स माइनस, सॉरी कोस एक्स प्लस कोस अल्फा, बट दिस टाइम यहाँ डी अल्फा रह जाएगा। तो अब देखिए आपका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका है अल्फा। So x term containing term x should be considered as constant. So this time the integral will be cos x, ये आपको कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा अल्फा प्लस अब cos अल्फा डी अल्फा, तो इसमें आ जाएगा cos अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। सो ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, सो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ मैं ले रहा हूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन है आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर, आप लिख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। सो इस तरह के जब इंटीग्रेशन आपके पास आएंगे जहाँ ये रेशनल फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन दैट इज ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, इस टाइप का अगर फंक्शन होता है जहाँ ये पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर पोलिनोमियल्स, अगर ये पोलिनोमियल्स होते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के अलग अलग तरीका है, आप क्वेश्चन के बाहर भी डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ अगर लेते हैं तो फैक्टराइज करके डिवाइड कर देते हैं। यार ये सिंपल हो रहा है, यहाँ अगर पहले दो टर्म से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ एक्स माइनस वन रहता है और माइनस वन अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी एक्स माइनस वन रहता है। तो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन तो पहले से है ही यहाँ डी एक्स। अब अगर आप इसको कॉमन ले आते हैं एक्स माइनस वन को, तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो आपका पहले से ही है डी एक्स। अगर इसको कंप्लीट कर दीजिए, ये फैक्टर काट हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ ये टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं बिकॉज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तो है आप लोग सबको पता है कि ये एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इंटीग्रेशन डी एक्स तो एक्स ही होता है, तो प्लस सी। तो आप ध्यान रहे आपको इंटीग्रेशन में जाने से पहले आपको फॉर्मूला सब याद करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला जो हमने पहले जो स्क्रीन था उसमें दिया हुआ है, आप वो फॉर्मूला आप रट लीजिए, सिर्फ रट लीजिए। उसके बाद आप प्रॉब्लम सेक्शन में आइए। और एक बात ध्यान देना चाहिए आप लोगों को कि क्या डिफ्रेंशिएशन जो पार्ट है, डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूला है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। माफ कीजिएगा, मेरा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। तो अब हम ले रहे हैं यही टाइप का एक दूसरा प्रॉब्लम, देख लीजिए। तो प्रॉब्लम नंबर 12, ये क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई this is x square minus x plus 1 dx. So this is the problem. Again you see this problem is of the similar type of the previous one. Here the numerator and denominator both are polynomials, so it is a rational function. So आपको just मैंने बताया है कि इस टाइप से प्रॉब्लम आप जब सॉल्व करने के जाते हैं तो पहले आप डिवीजन कंप्लीट करिए, डिवीजन कंप्लीट करिए। अगर न्यूमरेटर का जो पावर है, एक्स का पावर है, वो डिनोमिनेटर का एक्स का पावर से ज़्यादा और इक्वल अगर हो जाए तो डिवाइड करना पड़ता है। अगर इसका पावर, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर का पावर से कम होता है तो
दूसरा मेथड्स आएगा, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये डिवीजन आप बाहर में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं फैक्टराइजेशन लेके। तो मैं पहले बाहर का दिखा देता हूँ। इसको आप अगर आप डिवीजन करते हैं तो ऐसे होगा, जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, एक्स टू दावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो इसमें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स पावर फोर माइनस ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करने से ये खत्म हो जाएगा, ये हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा प्लस वन। तो इसके बाद आप डिवीजन टाइम होगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से ये खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन ये वाला। तो अब यहाँ आप देखिए वन टाइम डिवीजन होगा, तो इसमें होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, डिफरेंशियल डिवीजन तो खत्म हो गया। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम इसको इससे डिवाइड करें, कितना टाइम डिवाइड होता है, तो हमने देखा ये डिवीजन टाइम होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम डिवीजन होता है और डी एक्स। सो अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये तो वेरी सिंपल, इट इज एक्स क्यूब बाई थ्री ओनली प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इसका आता है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स मीन ओनली डी एक्स, सो दैट इज एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो ये हो गया आपका आंसर। तो अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये अब देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 13। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका है e टू द पावर फाइव लॉग ऑफ x, देन माइनस e टू द पावर फोर लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय e टू द पावर थ्री लॉग x माइनस e टू द पावर टू लॉग x dx। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो यहाँ आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर लॉग x टू द पावर फाइव। लॉगरिथम का प्रॉपर्टी तो आप सबका क्लियर है ही। तो ये पावर जो है, ये पावर यहाँ आ जाता है, एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का। तो ये है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को आपका है e टू द पावर लॉग एक्स क्यूब होता है, और यह माइनस e टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर होता है dx। सो अब आप देखिए, लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी है a पावर लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग x, इट इज इक्वल टू x, ये a है, इज इक्वल टू x। ये एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ आप देखिए e टू द पावर लॉग x पावर फाइव, सो हम यहाँ बेस नहीं लिख रहे हैं, मतलब इसका बेस है e। सो ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर फाइव। सो इसी तरह से बाकी ये हो जाएगा x टू द पावर फाइव, ये हो जाएगा x टू द पावर फोर, ये वाला x क्यूब और ये वाला x स्क्वायर, dx तो है ही। तो इसके बाद आप देखिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन तो है ही, इसको न्यूमरेटर में देखिए आप x पावर फोर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस वन। और डिनोमिनेटर में आप देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन होता है, और ये x माइनस वन रह जाएगा dx। सो वो x माइनस वन वाला जो फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें आपको रह जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स ओनली, एंड दैट इज इक्वल टू सिंपली एक्स क्यूब बाई थ्री एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर आप देखिए, आप खुद से ये प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू, ये आपको होमवर्क्स दे रहे हैं हम, ई पावर थ्री log x into x to the power 4 dx. This problem you can solve yourself. Then I am taking one more question. Problem number 16. So you see the problem number 16 is I is equal to integration of sine inverse of cos x dx.
This problem is also included in the NCERT book. So this is equal to integration of first of all you try to remove this sine inverse function with this cos, and that can be done very easily. Sine inverse of this sine is cos x can be written as sine of pi by 2 minus x then dx, then is equal to integration sine inverse will remove each other. So you have the function now pi by 2 minus x dx is equal to pi by 2. This is a constant term. Integration dx will be there, then minus integration of x dx. So this is equal to you see here pi by 2 and integration dx is x minus x का इंटीग्रल x square by 2 or plus constant c. So that is the answer. One more question. Now we come to one important question, number 17. Number 17. The problem is I is equal to integration of tan inverse of root over underscore 1 minus sin x divided by 1 plus sin x dx, and a condition is given here, that is x is in the first quadrant. This is given as done in the previous problem. First of all you have to remove this tan inverse function. So to do that, tan inverse of this one root over, we know this one, this is sin x by 2 minus cos x by 2 होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई ये वाला साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, ये वाला हम लिख सकते हैं। तो ये तो इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको क्लियर ही होगा, क्योंकि ये वन के प्लेस में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये वन के प्लेस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लिख सकते हैं, और माइनस ये जो साइन एक्स है इसको साइन ट्वाइस एक्स कंसिडर करके आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। तो अब देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी फॉर्मेट में आ चुका है, तो इसीलिए हम इसके ये 1 माइनस साइन एक्स के प्लेस में लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। उसी तरह डिनोमिनेटर भी 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसमें भी साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप देखिए ये होल स्क्वायर बराबर सब प्रोपोर्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, ये वाला देखिए रूट ओवर एक्स स्क्वायर, यू नो दिस वन रूट ओवर एक्स स्क्वायर, दिस इज रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मोड एक्स, यू नो दिस वन। सो वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो रूट ओवर ऑफ दिस कैन बी रिटन एज मोड ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस x by 2 and divided by this is also mode of sin x by 2 plus cos x by 2 और dx तो है ही हमारे पास। तो इसके बाद आप अब देखिए x कहाँ थे, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, तो x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप देखेंगे कि x बाई 2 जो है हमारे एंगल क्या है, या हमारे एंगल x बाई 2 है। तो x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यू सी हियर दिस इज x, सो x बाई 2 विल बी in the interval 0 pi by 4, and in this interval when x by 2 is from 0 to pi by 4, you see the values of sine is less than the values of cos. If you see the
ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल में अगर आप देखेंगे जे इस पोर्शन में जब 0 से π/4 तक होता है एक्स का वैल्यू, तो उसमें साइन का वैल्यू कॉस से कम होता है, मतलब ये वाला पोर्शन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। तो ये माइनस क्यों आया, आपको फंक्शन में ये क्लियर होता ही होगा। ठीक यहाँ भी ये तो दोनों पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए इसमें माइनस नहीं आएगा, सिर्फ साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू यही आएगा। ये कहाँ से लिखा है मैंने, ये वाला एक डेफिनेशन आपका था जब मोड एक्स, तो इसमें अगर एक्स तो नेगेटिव होता है तो हम माइनस एक्स लिखते हैं, और पॉजिटिव होता है इस तरह से डेफिनेशन पर। तो यहाँ आप देखिए जे 0 अप टू π/4 जो जब होता है एक्स बाई टू का वैल्यू, तो साइन कॉस से कम होता है, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नेगेटिव नंबर होगा। तो इसीलिए ये टर्म्स के पहले माइनस साइन आ चुका है। तो अब देखिए अब क्या मिला, हमको मिला अब टेन इनवर्स। न्यूमरेटर तो हम लिख सकते हैं cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और dx तो है ही। तो अब क्या करें, हम इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये वाला टर्म आपको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करें, अब देखिए अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो टर्म्स है उसमें अगर हम कस डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाता है 1 माइनस ये हो जाएगा 10x/2, तो ये वाला हो जाएगा 1 प्लस 10x/2, ये हो जाएगा आपका टर्म। तो इसके बाद अब देखिए, इसके बाद अब देखिए क्या होता है, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, एक बार में भी लिख सकते हैं। तो ये टेन इनवर्स a माइनस बी ओवर 1 प्लस a इंटू बी, हियर यू कैन कंसिडर a 1। सो this term is nothing but your 10 inverse 1 minus 10 inverse 10x/2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये हुआ था फॉर्मूला 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो वाला क्या था, 10 इनवर्स ऑफ x माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ इस्तेमाल किया है। सो ये dx इसको आप साइड में रख दीजिए। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 इनवर्स 1, तो ये π/4 होता है, तो हमने π/4 यहाँ लिख दिया, dx माइनस ये 10 और 10 इनवर्स रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा आपको सिर्फ, थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं, यहाँ आपका रह जाएगा सिर्फ x/2 और dx। तो इसके बाद आप चाहिए इज इक्वल टू π/4 तो कांस्टेंट है, यहाँ देखिए π/4 तो कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रल होता है x, तो πx/4 हो गया, माइनस यहाँ हाफ तो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, सो इसको आप बाहर ले आइए, इंटीग्रेशन x रह गया, तो इंटीग्रेशन x का होता है x²/2 और प्लस c। तो इसको कैलकुलेट करके आप अगर ठीक ठाक से लिख दीजिए तो इसका हो जाएगा πx/4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस x²/4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो यहाँ आप क्वेश्चन इसको सोच सकते हैं। तो इसके बाद हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ, और 19 नंबर प्रॉब्लम होता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ है हमारा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ दिया है 1 माइनस साइन एक्स। सो इस बार अब देखिए इसमें रूट, ना तो रूट ओवर है ना तो कुछ टेन इनवर्स कॉस इनवर्स ऐसा कुछ टर्म्स बाहर में है। तो इस बार आप पहले वाले मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, सेपरेट करने का ट्राई कीजिए इसको। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 2 माइनस, अब देख लीजिए पहले 1 माइनस साइन एक्स, क्या हम न्यूमरेटर इसे लिख सकते हैं क्या, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस को माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स, तो न्यूमरेटर तो हम ऐसा लिख सकते हैं।
तो 1 - sin x और dx। तो हमने ये क्यों किया? इसलिए किया, अगर हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं, ये डिनोमिनेटर हम खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए। तो ये 2 तो आ जाएगा बाहर, तो यहाँ रह जाएगा 1/1 - sin x। dx तो आपका है ही, माइनस ये पूरा टर्म कैंसिल होके आपके पास सिर्फ रह जाएगा dx। तो इसके बाद अब देखिए, इसके बाद अब देखिए ये वाला पोर्शन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला वाला, क्या कुछ याद आया आपको? ये वाला पोर्शन में पहले एक क्वेश्चन हमने किया था, है कि नहीं? तो क्या किया था हमने, इसका जो ऑपोजिट साइन वाला फैक्टर है उसको ही हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर देंगे। सो ये वाला 1 - sin x तो पहले से ही था, हमने क्या किया, 1 + sin x प्रोडक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम 1 + sin x न्यूमरेटर में भी एक लिखा है, और -dx ये तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, लेकिन एक लाइन में ख़त्म करेंगे। ये हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन dx तो सिर्फ x होता है। तो वो 2 टाइम्स, अब अगर आप इसे लिखे 1 - sin x, तो 1 + sin x तो पहले से ही था ही, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 - sin स्क्वायर, और उसको हम लिख सकते हैं cos² x dx, और माइनस इंटीग्रेशन dx, इसको आप छोड़ दीजिए। फिर अब आइए इसके बाद में, तो देखिए इसमें क्या होता है, इज इक्वल टू 2 तो है ही आपका, इंटीग्रेशन 1/cos² दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाई sec² x dx, इसको हम लिख सकते हैं माई प्लस 2 ऑलरेडी हियर, देन हियर 1/sin cos² एंड sin/cos। 1/cos इज व्हाट, 1/cos इज sec x, और क्या रह गया, sin/cos रह गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं 10x, पहले भी क्या है हमने इसी तरह प्रॉब्लम। सो माइनस इंटीग्रेशन dx। अब देखिए सारे के सारे इंटीग्रेशन अब हम लिख सकते हैं। तो 2 इंटीग्रेशन sec² के प्लेस में हम लिख सकते हैं tan²x, सॉरी नॉट tan², 10x, हम लिख सकते हैं 10x प्लस, अब 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन sec x 10x के प्लेस में हम लिख सकते हैं sec x, क्योंकि sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x 10x होता है, तो इंटीग्रेशन sec x 10x का sec x हो जाएगा, और माइनस dx का तो x है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो यही है आपका आंसर। So we finish the lecture here. One more lecture will be given in this chapter. There are some questions, important questions, and that will be done in the subsequent lectures. Thank you very much.